Good morning everyone. Sanila ma'am is back. So today we are going to start a new lesson, that is lesson 5. Lesson 5 is about keyboard. Okay. In previous class we have studied about mouse in lesson 4, and now from today we are going to start a new lesson, that is lesson 5, keyboard. Okay. So in this lesson we will study about keyboard and keys. Okay. So let's get started. All of you take out your book, open page number 32. Lesson 5, keyboard. First topic is keyboard. Okay? So in this lesson, what all topics we are going to study is mentioned in the yellow box in your book. यहाँ पे ये yellow box में आपको सारे topics mentioned है. So first of all, we'll read that. Okay. So the topics that we are going to study in this lesson are keyboard, number keys, letter keys, and special keys. ओके चार टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. पहले तो हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कीबोर्ड में दी हुई कीज के बारे में, दैट इज नंबर कीज, लेटर कीज एंड स्पेशल कीज. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first topic mentioned here is keyboard. Keyboard is a very important part of the computer. Keyboard is a very important part of the computer. It has a number of buttons or keys on it. It has a number of buttons or keys on it. These keys are pressed to type or write on a computer. These keys are pressed to type or write on a computer. ठीक है. So कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा लिखा हुआ है, और उसमें बहुत सारे बटन्स हैं या फिर कीज हैं. हमने पहले भी पढ़ा है, हम कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उनको बटन्स कहते हैं, उसके अलावा कीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कीज. So what we call buttons or keys. Okay, and these keys are pressed to type or write on a computer. आपको जब किसी पेपर में या कॉपी में लिखना हो तो आप क्या करते हो? You take out your pencil or pen and you will simply write down, right? But in your computer, when you have to write something, you have to use keyboard, है ना? To type, you have to use keyboard, है ना? कंप्यूटर में लिखने के लिए आप कीबोर्ड यूज करते हो. ठीक है. कंप्यूटर में आप लिखते नहीं हो, टाइप करते हो. तो टाइप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कीबोर्ड. ओके, क्योंकि कीबोर्ड में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कीज हैं, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स लर्न अबाउट सम कीज ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के कुछ कीज के बारे में पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट की इज लेटर कीज. ठीक है. लेटर कीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेट कीज. देयर आर 26 letter keys on a keyboard. These keys show letters from A to Z in a jumbled order. We use these keys to type words and sentences. Okay, so letter keys के बारे में दिया हुआ. letter keys कितने हैं? 26, and those 26 are these. Okay, 26 keys that we have on in our keyboard. The 26 alphabets are this. Okay, so they are in a jumbled form, right? वो एक jumbled form में है या फिर वो sequence में है? Yes, they are in a jumbled form. Jumbled form means क्या ये एक arranged form में है? क्योंकि ABCD हमारी कैसी होती है? A से start होती है, ABCD ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी है क्या? नहीं, ये पूरी jumbled है. QWERTYUIOPASDFGH JKL ZXCVB and M. ये एक जम्बल्ड फॉर्म है, राइट. इसका कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, सब कुछ उल्टा सीधा यहाँ वहाँ जमा हुआ है, राइट. सो ऐसे में क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? जम्बल्ड फॉर्म, राइट. सो क्या लिखा हुआ है? लेटर कीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फाबेट कीज. लेटर कीज को हम अल्फाबेट कीज भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि कीज में तो पूरी अल्फाबेट्स दी हुई है आपके, है ना. और उसके साथ देयर आर 26 की लेटर कीज ऑन अ कीबोर्ड, और ये 26 होते हैं. सो आप लोग ने क्या कभी काउंट करके देखा है? सो लेट्स काउंट इट. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26. Yes, there are 26 alphabet keys. Okay. Now moving on to the next line. These keys shows letters from A to Z in a jumbled order. जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया ये बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं है, ये जम्बल्ड फॉर्म में है. A to Z तो है लेटर्स, A से लेकर Z तक पूरा है, 26 है, हमने काउंट कर लिए. लेकिन एक तरीके में जो जैसे होना चाहिए, जैसे A B C D वैसा नहीं है, ये यहाँ वहाँ कहीं भी कोई भी लेटर्स लिखे हुए हैं. ठीक है. Then we use these keys to type words and sentences. और हम इसे ही यूज करके कंप्यूटर में कोई भी वर्ड या सेंटेंस को टाइप करते हैं. ठीक है. Yes. Now see there is one important note given below on the same page. See here, है ना? Do you know लिखा हुआ है a keyboard has 104 or more keys. Wow. एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है टोटल? ये तो सिर्फ 26 ही हुई. अल्फाबेट अकेली, है ना? अल्फाबेट कीज अकेली ही 26 है ना? लेकिन और भी कीज होते हैं कीबोर्ड में, राइट? तो वो कितने हैं? देयर आर 104 कीज इन टोटल, है ना? टोटल में आपके कीबोर्ड में कितनी कीज है? 104 है. ओके. यस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर कीज. There are two sets of number keys on a keyboard. These keys show numbers from 0 to 9. We use these keys to type numbers. Okay. So आपकी number keys कितनी होती है? 0 to 9 होती है ना? जैसे अभी ये आपकी अल्फाबेट की हो गई. अब हम नंबर की देखेंगे. नंबर की आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 0. ओके. ये आपकी न्यूमेरिक कीज होती है. ठीक है. दैट इज नंबर कीज. और ये नंबर कीज को हम क्यों यूज करते हैं? ये यूज करके, इन्हें यूज करके हम नंबर्स टाइप करते हैं. जैसे हमने अल्फाबेट कीज को यूज करके वर्ड्स और सेंटेंसेस को टाइप किया, वैसे ही जब हमें कभी कोई नंबर टाइप करना हो तो हम नंबर कीज यूज करेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? अब एक और चीज, आपके कीबोर्ड में दो जगह नंबर कीज होती है ना? सो दिस इज योर कीबोर्ड, है ना? यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी नंबर कीज दी होती है ना? देखा होगा आपने. और वो कुछ इस तरह से होती है, जो ये नीचे मैम ने लिखा हुआ है ना, 1 से लेके 0 तक. साथ में आपको इस साइड, राइट साइड ऑफ योर कीबोर्ड, यू विल गेट नंबर कीज. यहाँ भी आपकी नंबर कीज होती है. ठीक है. सो इसे भी हम नंबर की कहते हैं. ये भी वैसी है आपकी 0 to 9, है ना? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में 0. ठीक है. तो आपके कीबोर्ड में दो जगहों पर नंबर कीज होती है. ठीक है. और वो नंबर कीज कुछ ऐसे दिखती है. देखो आपके टेक्स्ट बुक में शो है. एक ये होती है जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, और एक ये होती है जो राइट साइड में होती है. ठीक है. सो इज दैट क्लियर एवरीवन? यस. नाउ सी दिस space bar key, enter key and some more keys are given and these keys are called special keys. ठीक है. जिन कीज को यूज करके हम कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेशल कीज. ठीक है. और जो अल्फाबेट टाइप करने के लिए या वर्ड्स और सेंटेंस टाइप करने के लिए यूज करते हैं उनको हम लेटर कीज कहते हैं. ठीक है. और जिन कीज को यूज करके हम नंबर्स को टाइप करते हैं उन्हें हम नंबर कीज कहते हैं. और जिनको यूज करके हम कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक किसी को अगर स्पेस देना है वर्ड्स के बीच में तो उसके लिए हम स्पेस बार की प्रेस करते हैं, और स्पेस बार की हमारा स्पेशल की हुआ. ठीक है. तो ये आपका कीबोर्ड है. हाँ. और यहाँ पे जो आपका सबसे लंबा की होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस बार की. ओके. सो विल रीड इट. स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. जैसे कि मैम ने भी बताया, कीबोर्ड में सबसे लंबा की जो होता है, सबसे बड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस बार की. वी यूज द स्पेस बार की टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स. जैसे अभी मैम ने कहा, अब जैसे मैंने यहाँ स्पेस लिख के अगर स्पेस बटन नहीं क्लिक किया और मैंने डायरेक्ट लिख दिया की, तो ये तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और वो एक वर्ड तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, राइट? तो अलग अलग वर्ड को लिखने के लिए हमें हमेशा बीच में एक स्पेस देना पड़ता है, दैट इज गैप, है ना? तो आप क्या करते हो? आपकी जो अल्फाबेट कीज होती है उसमें से आपने SPACEBAR स्पेस बार पूरा टाइप किया, उसके बाद आपको स्पेस चाहिए था, आपने स्पेस बार की पे क्लिक किया. ठीक है. उसके बाद आपने KEY की प्रेस किया, तो आपका स्पेस बार की पूरा टाइप हो. आया समझ में? सो स्पेस बार की इज अ स्पेशल की
used to give space between two words. Is that clear, everyone? Yes. Now moving on to the next topic, that is enter key. आपके कीबोर्ड में एक ऐसी की दी रहती है यहाँ पे, एंटर की, ठीक है, ये आपकी एंटर की है, और एक यहाँ पे भी दी रहती है आपके नंबर की के पास, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटर की। अब एंटर की का यूज क्या होता है, एंटर की से क्या करते हो आप, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की? एंटर की में कैसा एरो भी बना रहता है ना। सो एंटर की हेल्प्स अस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब आप देखना, आप जब भी कोई पेज ओपन करते हो कंप्यूटर में, सपोज ये आपका मॉनिटर स्क्रीन है, यहाँ पे आप जब कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आपके यहाँ पे एक लाइन ब्लिंक हो रहा होता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो क्या होता है, वो आपको बता रहा है कि आप कौन सी लाइन में टाइप कर रहे हो, आपका कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, वो आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो उस कर्सर को अब आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो आप कैसे लाओगे, आप एंटर की को प्रेस करोगे तो आपका कर्सर यहाँ से हटके सीधे नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग में आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। तो एंटर की का यही यूज होता है, ठीक है। एक की यहाँ होती है और एक की, दो एंटर कीज होती है आपके कीबोर्ड में, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बुक में देखो एक ही एंटर की शो होने हैं, और वो एक ये है ना, जो भी मैम ने बनाया ये वाली की, राइट, लेकिन एक यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो ये दो आपकी एंटर कीज हो गई। अब इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल दैट मैम ने जितना अभी आपको पढ़ाया है इसे ठीक से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिलीट की एंड बैकस्पेस की, एरो की, कैप्स लॉक की, अभी और भी कीज पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आज मैम ने आपको जितना पढ़ाया है, ट्राई टू रीड दिस एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, समझो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, और जहाँ जो डाउट आए मैम से पूछो, ठीक है। सो गुड डे एवरीवन।